Welcome to DRTSPR, that means Dr. Tangella Shivaprasad Reddy Show. DRTSPR show. I am Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Jignesh Gokani. I've already introduced you, but to recap, he's a Sujok master, and you see, he comes with Come for Lives, and then he has been practicing acupuncture, and then he is a resource person for various things, including Sujok. And also he is committed to create Swasthya Bharata, which is being dreamt by our Honorable Prime Minister. Incidentally, Mr. Narendra Modi is touring Andhra Pradesh and Telangana on this day when we are trying to do this live show. So his dream, he wanted to make it come true. How? He want to have an integrated Indian medical system, wherein our Ayurveda to nature cure to Sujok or whatever you say, all our traditional therapies put together. Why? To relieve pain. तो जिग्नेश गोकानी जो है हमारे प्राचीन संस्कृति की जो है आयुर्वेदा हो या परभाषा हम कहते हैं, जब स्वास्थ्य हो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका स्वास्थ्य जब बिगड़ना शुरू होता है तो हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कृत के तहत पर सब कुछ हमने दिया है, लेकिन एक ही चीज क्या है, हम उसको जानने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसीलिए यह शोध के द्वारा हमारे प्राचीन संस्कृति के द्वारा किस तरह हम अपने स्वास्थ्य बनाए रखें और सब कुछ हमारी पूर्वजों ने हमें दिया है और उसका मेल करते हुए किस तरह ये वर्तमान और भविष्य में हम एक स्वास्थ्य की जीवन बिता सके ताकि हम खुश रहे। जब खुश रहो आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। సంతోషం సగం బలం. సంతోషంగా ఎట్లా ఉండాలనేది మన ప్రాచీన సంస్కృతి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ విద్య, వైద్య విధానాలు ఏవైనా కావచ్చు, నివారణ కావచ్చు, చికిత్స కావచ్చు, వాటన్నింటి మేలువ నుంచి ఆ సంస్కృతిని ప్రజలకు ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశం. ఇక్కడ భారత ప్రధానమంత్రి కూడా ఒక కలగా అన్నాడు కాబట్టి స్వస్థ్య భారత్ దాంట్లో భాగంగానే డాక్టర్ జిగ్నేష్ గోకాని గారు ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. కమ్ ఫర్ లైవ్స్, మనం సంతోషంగా ఉందాం, జీవిస్తాం, हम संतोष के साथ हमारी जीवन बिताएंगे, क्योंकि पिछले हम जो किया है अन्नमय कोश, हम वहां पर रुक गए। निर्वाणा स्तोत्र जो अहम भूमि है, हम आदि शंकराचार्य की बात करते हैं। आई एम सन इन लॉ ऑफ द ग्रेट लैंड ऑफ केरला, फ्रॉम वेयर आदि शंकराचार्य comes out. द्वैत्वम अद्वैत्वम. What is द्वैत्वम? Your soul and yourself are different. Advaitvam, your soul and yourself are one. That means Atma Paramatma. The way you take what is Atma, what is Paramatma, once you understand, that is life. So Adi Shankaracharya, he has tutored that. So that Nirvana mantra, how it is going to influence our physiological senses in the body. Physiological senses, the way I am looking, how? Because of the anatomy, the bones. The bones culture making physiological, the functions of the body work. What is the connection between the existing body, anatomical body, the physiological body, and the way you look at me with our ancient traditions? That is the beauty of our culture. Everything is there, our ancient culture. The only thing is understand, relate it, so that you will come out of all sicknesses, mental to physical to otherwise stress, everything you can come out. Everything is there in our thing. Why do you go to a temple? Why do you go for an yatra? That again I will try to tickle his mind later on. Everything embedded in our culture, such a wonderful ancient civilization. So we are proud to present Dr. Jignesh Gokani from where we stopped last time, Nirvana mantra. Now we are going ahead. We'll just give you an insight and then start. Okay. So before I start, I would like to say something on the what is the difference between a human being and the animal? I mean, as Adi Shankaracharya, he has defined the whole existence, including health and the concept of anatomy physiology. But I want to say something which is very common between animal and human being. Is Yes, go ahead now. okay.
So as I was talking about that, when we want to talk about what is a common between animal and a human being, so four things are very common. We have a shloka which goes like ahar nidra bhaymai thunanch सामान्य एतत् पशुभिः समाना. अर्थात आहार, फूड, निद्रा, स्लीप और रेस्ट, भय यानी फियर, एंड मैथुन और संगति, what you call as सहजीवन, सहचर्य. This is all common in animal and human being also. There is no difference into that. So ahar, nidra, bhai, मैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिः समाना. धर्मो हितेषां को अधिक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीवैका. It means that only few people, they know their dharmas, and based on their dharmas they decide what they should do and what they should not do. And that is how the animal instinct and human instinct is being differentiated. So I wanted to start with this because ultimately what Adi Shankaracharya ji has spoken about, that how to evolve from the animal instinct to the divine instinct or to the devatva, or how to become a human being. That is what is a whole Neti Neti or Nirvana Stotra base. But before I go to that, I just want to add few more things. I want to, for the sake of your viewers, generally in everything in our Sanskrit or in our Sanskriti, everything is written with very much logic. Nothing is just by fluke. For example, how many yugas we have? So we have four yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. Why only four? Why not five? Why not six? You Or why? wonderful. Okay, How many yugas we have? Go ahead, sir. Please. yeah. So how many yugas we have? So we have got four yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. So why only four? I'll give you one more. How many Vedas we have? So again, we have only four Vedas: Samved, Rigved, Yajurved, and Atharvaved. Again, why only four Vedas? Why not five? Why not three? Yes. So we have got four Vedas: Samved, Rigved, Yajurved, and Atharvaved. Right? Yeah. Now, if we go to the next slide, that means if we talk about Varnas, so again we have got four kind of Varnas defined by Sanatana Sanskriti. Most of the time, this has been very wrongly defined by majority of the people as a caste. लेकिन ये कास्ट सिस्टम है ही नहीं. हमारे समाज के अंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर चार प्रकार के कर्म कहे गए हैं. एक होता है ब्राह्मण का कर्म, जो जिसका कार्य होता है सबसे ज्यादा नॉलेज लेना और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना. ये काम सिर्फ ब्राह्मणों का होता है. यानी पुराने जमाने में अध्ययन करना, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, और अध्ययन करके क्या सही है और क्या गलत है ये स्थापित करने का काम जो भी करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता था. तो ये नहीं है कि क्षत्रिय जो कैस्ट वाइज ब्राह्मण नहीं है. ब्राह्मण सुपीरियर जो दिखाया जा रहा है आजकल, ये गलत है. व्हाट दे आर ये ट्राइंग टू शो गलत है, ब्राह्मण बाय कैस्ट, दैट वो इज रॉन्ग. बिल्कुल गलत है. ब्राह्मण का राइट. मतलब ये होता है वो आदमी जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज की भलाई के लिए जो स्टडी करता है, और स्टडी करके जो लोग इग्नोरेंट है उन्हें जो एजुकेट करता है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था. सो He एक can be from पर्टिकुलर any कास्ट, caste or religion. He can be from any caste फ्रॉम or एनीवन, religion in this any context. caste, any religion, anybody who is Right. aspirant to learn. जो Right. आदमी अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना चाहता है उसको ब्राह्मण कहा जाता था, ब्रह्मदेव जिसको कहा जाता था. और ज्यादातर ये पुराने जमाने में एक व्यवस्था होती थी कि मेरे पिताजी जो काम करते थे मैं भी वही काम करता था. तो उस तरीके से परंपरा फैमिली में चलती थी, बट उसके लिए कोई बैरियर नहीं होता था. जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का कर्म क्या होता था? तो क्षत्रिय जो थे वो हमेशा युद्ध करते थे. तो उनका कार्य होता था लोगों को प्रोटेक्शन करना. यानी आज के जमाने के हिसाब से देखें तो आज की जो पुलिस है या आज की जो आर्मी है उसे आप क्षत्रिय कह सकते हो. Right. फिर वो नेवी भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकती है. लेकिन जहां पर समाज की पूरी जनसंख्या को बाहर के आक्रांताओं से जो रोकने वाले जो लोग होते हैं और हमारे खुद के लोगों को जो प्रोटेक्शन देने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया था. यानी क्षत्रिय या कास्ट या वर्ण नहीं होता था, लेकिन जो भी समाज के लोगों की भलाई के लिए युद्ध करता था वो क्षत्रिय होता था. कभी कभी किसान भी युद्ध करते थे तो वो भी उस समय के लिए वो क्षत्रिय हो जाते थे. जैसे अगर आपने सुना होगा तो शिवाजी के साथ जो तानाजी थे वो तानाजी ओरिजिनल फार्मर थे, लेकिन
अल्टीमेटली वो युद्ध करते थे, इसलिए वो भी क्षत्रिय धर्म में आ जाते थे। तो उनका जो धर्म था वो धर्म क्षत्रिय का था, क्षत्रिय का था। जो तीसरा जो वर्ण होता था उसका काम होता है वैश्य। वैश्य अर्थात वो लोग होते हैं जिनका काम ये है कि समाज के अंदर कोई भी चीजों की जो जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं आपूर्ति करना, यानी समाज के अंदर खाना पीना, कपड़े, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजों की जो जरूरत पड़ती है, और इन सारी चीजों को कहीं से आपको मंगाना पड़ता है, कहीं पर सप्लाई करना पड़ता है, ये जो विनिमय का जो काम करता है उस कम्युनिटी को, उस Needs. The one who produces needs. या हु प्रोड्यूसर, हु इज सप्लायर, ही मे नॉट बी प्रोड्यूसिंग, मतलब वो जैसे वो Supply. किसान से, हाँ वो सप्लाई करता है बेसिकली। ट्रेडर आप सॉरी, Right. आप उसे ट्रेडर कह सकते हो, Wonderful. या जिसको आप व्यापारी कह सकते हो, बिजनेसमैन कह सकते हो। उसका काम ये है कि समाज की जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसे इन्वेस्टमेंट से कुछ चीजें बाहर से लेकर आएगा, और समाज में Right. वो चीजें देकर उसमें 1 रुपए में से 1 रुपए 25 पैसा, 1 रुपया 30 रुपए पैसा थोड़ा सा उसमें से कमाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कास्ट होता था उसको बोलते थे वैश्य, अर्थात बिजनेस कम्युनिटी। Right. और चौथा जो वर्ण होता था उसे क्षुद्र कहा गया था। क्षुद्र वो होते हैं जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, अर्थात Hmm. उन लोगों को कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। जैसे आप ब्राह्मण को पैसों के देकर आप खरीद नहीं सकते हो, क्षत्रिय को भी पैसे देकर खरीद नहीं सकते हो। हालांकि जयचंद जैसे कुछ लोग थे जो पैसों के लिए लोगों को भी खरीदते थे और खुद भी बिकते थे, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी पैसों और प्रलोभन से उतने ज्यादा नहीं बिकते थे जितने कि क्षुद्र लोग होते थे, जिसको आज हम सबसे लोअर कास्ट जो बोलते हैं। Hmm. जैसे ये वो होते हैं कि अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो आपके किसान आपके खेत में आकर के काम करके जाएंगे, अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो आपके घर में आके काम करेंगे, अगर आप उसे पैसा दोगे तो आपकी फैक्ट्री में आके काम करेंगे। तो ये जितने भी लोग होते हैं जो पैसे के एवज में अपनी जो स्किल है वो आपको जो देते हैं, उन सभी लोगों को क्षुद्र कहा जाता था। सो Employees. हाँ जी, Employees from any sector. या Skilled employees. इन Skilled employees. लार्जर पर्सपेक्टिव जैसे एम्प्लॉइज, यस यस। Skilled तो employees. हमारे, या तो समाज के जो 4 पिलर होते थे, वो 4 पिलर के अंदर सबसे पहला होता था इंटेलेक्चुअल पिलर का, यानी कि वो जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करता था उसे हम ब्राह्मण कहते थे। दूसरा पिलर होता था जो सब सब पूरे समाज का प्रोटेक्शन करता था, युद्ध के सामने हमारे अस्तित्व को बचाता था, हमारी मर्यादाओं को, हमारी बहन बेटियों से लेकर के पूरे समाज की व्यवस्था देखने का जो काम होता था वो क्षत्रियों का होता था। फिर समाज की जो जरूरतें होती थी उस जरूरतों को पूरा करना ये वैश्य अर्थात बिजनेस कम्युनिटी का काम होता था। और फाइनली इन तीनों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग होते थे जो पैसों के एवज में इन सब लोगों के लिए काम करते थे, उन सभी लोगों को क्षुद्र कहा जाता था। सो दिस इज हाउ अ ब्रॉडली स्पीकिंग समाज वाज डिफाइंड, मतलब हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से वर्ण व्यवस्था कहा गया था। फिर ये कुल व्यवस्था किस तरह आज देखिए ना, कुल के बल पर एमएलए, कुल के बल कुल, पर एमपी, कुल के बल पर हाँ ये बिजनेसमैन, जो क्या कुल है की, सब? हाँ हाँ, ये जो कुल की व्यवस्था है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग साउथ इंडिया में रहते हैं, तो तुलुआ वंश जो है, तो हम्म, तुलुआ वंश ने करीब करीब 500 साल तक विजयनगरम के ऊपर राज्य किया। हम्म, ठीक, अब 500 साल तक एक ही राजा तो नहीं रहा होगा, हम्म, एक राजा रहा होगा, उनके मरने के बाद दूसरा आया होगा, दूसरे के मरने के बाद हम्म, तीसरा आया होगा। तो हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होती थी कि जैसे मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है, तो मुझे पता है हम्म, कि एक राजा कैसे काम करता है, कैसे परिस्थितियां आती है और किस परिस्थितियों में किस तरह से वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसी प्रकार हर पिता अपने पुत्र को हमेशा ये सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार पुराने जमाने में जो परंपरागत व्यवस्थाएं जो होती थी उसे मैं बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक मानता था, क्योंकि बच्चों ने बचपन से उन्हीं चीजों को देखा है, उन्हीं चीजों को देख के जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें उन चीजों को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर महामंत्री का बेटा है तो वो भी बड़ा होकर महामंत्री बनेगा, सेनापति का बेटा है तो उसने पहले से अपने पिताजी को घर में युद्ध अभ्यास करते हुए देखा होगा, तो उसके बेटे के लिए युद्ध करना बहुत सहज हो जाता है। इस तरह से हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था कि लुहार का बेटा लुहार होगा, सुनार का बेटा सुनार होगा, सुथार का बेटा सुथार होगा। कारपेट जो कपड़े बुनने वाला होता है, जैसे जिसको दर्जी बोलते थे,
टेलर होता था, उसका बेटा टेलर होगा। तो ये एक हमारी व्यवस्था बनी हुई थी कि जहां पर एक पिता जब अपना समय 20 साल 25 साल का समय हो जाता है और उसका जब शरीर उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो तब तक में उसका बेटा आके उसको सपोर्ट सिस्टम करेगा और उस तरह से समाज की व्यवस्था चलती जाएगी। ये जो होता था ये कुल व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता है कि जो आदमी समाज के लिए काम करेगा, जो आदमी समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, उसे समाज सिलेक्ट करेगी। या आप ये कहें कि हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है उसमें हम इलेक्ट करते थे। पुराने जमाने में राजा को इलेक्ट नहीं किया जाता था, उसे सिलेक्ट किया जाता था। हालांकि उस सिलेक्शन के अंदर भी एक इलेक्शन प्रोसेस होता था। अगर आपने राम राज्य के बारे में अगर सुना होगा, तो भगवान राम को जब दशरथ जी उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो उससे पहले उन्होंने साम्राज्य, गणराज्य, राज्य, इन सब के बड़े बड़े लीडरों को बुला करके उन सब की राय ली थी कि क्या मैं इसे एक राजा के हिसाब से क्या इसे प्रतिस्थापित करूं। और वहां पे भगवान राम ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि मुझसे अच्छा भरत इस शासनकाल को संभाल सकता है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग भरत को अपना राजा नियुक्त करें। तो हमारे वहां पे भी पुराने जमाने में वोटिंग सिस्टम होता था, क्योंकि एक ही राजा के जब 2-3 पुत्र होते थे, तो स्वाभाविक रूप से कौन ज्यादा उसके लिए उत्तराधिकारी है, कौन ज्यादा सक्षम है, इस बात का हमेशा क्राइटेरिया होता था। और वहां पर अगर आपने वो रामायण के अंदर बहुत अच्छे से रामानंद सागर जी ने इसको पिक्चराइज किया था, और बहुत अच्छे से वो जो गण थे, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग समाज के, अलग अलग स्तर के, उन्होंने राजा दशरथ को और भगवान राम दोनों को समझाया था कि क्यों भरत जी से ज्यादा उपयुक्त भगवान श्री राम खुद है। और इस प्रकार से उस जमाने में भी राजा बनने के पहले एक प्रोसेस होता था, और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही किया जाता था। ये मुगलों ने आकर के, और खास करके जैसे औरंगजेब जैसे जब लोग आए आक्रांता, कि वो खुद के ही भाई को मार करके अपनी गद्दी को हथियाना, या अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करना, जयचंद जैसे लोग हो गए, या मुगलों के बाद ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको हिंदू राज्य के अंदर। ऐसी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हिंदू समाज में उतनी ज्यादा कभी नहीं थी। इसके ऊपर जब हम आते हैं, तो अगर हम हमारे जीवन स्तर की बात करें, यानी हर एक जीवन, हर ये भी एक हर इंडिविजुअल के लिए लागू होता है, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो उसका जन्म होता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में उसके जीवन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो सबसे पहला होता है बचपन काल या बाल्यकाल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने का अनुरोध किया गया है। अर्थात उस समय पे लड़का या लड़की शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने कामकाज को सीखेंगे। जब वो वयस्क हो जाते हैं, यानी 21 से लेकर 25 ईयर्स की उम्र के आसपास जब आ जाते हैं, तब उन्हें गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करना चाहिए। अर्थात उन्हें अपनी शादी करनी चाहिए, फिर अपने बच्चे पैदा करने चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। जैसे ही वो 50 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो 50 साल की उम्र में जब आ जाते हैं, तब उनके बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो दोनों 20-25 साल के हो जाते हैं, अर्थात वो शादी के लायक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक इंसान का ये कर्तव्य है कि वो वानप्रस्थाश्रम में जाए, अर्थात वो बैक सीट ले ले और फ्रंट सीट पे अपने बेटों को या बेटियों को बिठाए कि अब आप लोग अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और जहां पर हमारी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, जहां आपको लगेगा कि हमारी किसी एडवाइस की आपको जरूरत है, तो आप हमें हमेशा पाओगे। लेकिन अगर आप हमें बिना पूछे ही करने के लायक बन जाते हो, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा जीवन सार्थक होगा। और जैसे ही आप 70 प्लस क्रॉस कर जाते हो या 75 प्लस क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद आप संन्यास आश्रम में आ जाते हो। अर्थात उस व्यक्ति को समाज, समाज की व्यवस्थाएं और समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बचपन से लेकर के 75 ईयर्स तक ये तो कर ही रहा था। अगर 75 ईयर्स के बाद भी अगर वो करता रहेगा, तो नए लोग जो आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उसे काम करने का मौका कैसे मिलेगा। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने आई थिंक लास्ट 2019 के इलेक्शन में एक नई घोषणा की थी कि 75 ईयर्स के प्लस वाले जो भी लोग हैं, जो भी लीडर हैं, अब उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, अर्थात उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि एक आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 टर्म से, 4 टर्म से, 5 टर्म से बना हुआ है, अब वो एक तरह से उसमें ढब हो चुका है।
उसे भी तो नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी है, क्योंकि कल वो समाज में नहीं रहेंगे तो उनके पीछे समाज सेवा करने के लिए भी अच्छे लोग होने चाहिए। ये भी लीडरों की खुद की व्यवस्था है कि दे शुड, मतलब उन्हें ऐसे अपने जैसे लीडर बनाने चाहिए जो उनके पीछे उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर सके। सो ये हमारे समाज में, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम,